Good morning, students. Welcome to AR Tutorials. First of all, I would like to inform that I have created a group on Telegram wherein you can join and you can get all your doubts clear related to the topic which we discussed in the series of videos. Even we as a AR Tutorials, we share MCQs related to the topic which we covered in the videos, and it will help you in exams as we share the question which is based on the earlier exam papers. The link of the Telegram is given in the description box. In the previous class, I have already discussed the biography of Robert Frost and his famous poems such as Stopping by Woods on a Snowy Evening and Birches. Today, we are going to discuss MCQs, which is very important from your upcoming exams. Let's discuss. Question number 1. When was Robert Frost born? The options are 1873, 1874, 1875 and 1876. The correct option is B. He was born on 26 March 1874 in San Francisco, California, US. Question number 2. When was Robert Frost died? Options are 1961, 1962, 1963 and 1964. And the correct option is C, 1963. Actually, he was died on 29th Jan 1963 in Boston, Massachusetts at the age of 88. और उनके मरने का जो reason था वो complication from prostate surgery, and he was buried in Old Bannington Cemetery, which is situated in Ballington. Question number 3, which is very important. How many times Frost was won Pulitzer Prize for Poetry? 2 Pulitzer Prize for Poetry, 3 Pulitzer Prize, 4 Pulitzer Prize and 5 Pulitzer Prize. The correct option is yes, C. He got 4-time Pulitzer Prize for his works. पहली बार उनको जो है न्यू हैम्पशायर के लिए 1924 में, कलेक्टिव पोएम्स के लिए 1931 में, फर्दर रेंज के लिए 1937 में और अ विटनेस ट्री के लिए 1943 में मिला था. Question number 4. In 1961, Robert Frost was made Poet Laureate of New England, Poet Laureate of New York, Poet Laureate of Vermont and Poet Laureate of California. Yes, absolutely correct. The correct option is C. He was at the age of 86, he became the Poet Laureate of Vermont. At the age of 86 में उनको जो है वर्माउंट का Poet Laureate बनाया गया था. Question number 5. Birch's poem was included with poetry collection of Frost. किस poetry collection में उनको शामिल किया था? Yes, the question options are Mountain Interval, A Boy's Will, North of Boston or New Hampshire. Yes, the correct option is A. Mountain Interval in the year which was published in the year 1916. Birches shows Frost as a love poet, nature poet, a spiritual poet and poet of death. Yes, the correct option is nature poet. Frost poem Birches inspired from options are Tintern Abbey by William Wordsworth, La Bella Dame Sans Mercy by John Keats, Swing on Birch Tree by Louis Larcom or Milton's Paradise Lost. Yes, absolutely correct. The correct option is C. Swinging on a Birch Tree by Lucy Larcom. Question number 8. Birches was first appear in Spectator, The Prelude, The Idler or The Atlantic Monthly.
Yes, the correct option is D, Atlantic Monthly. In the year 1915 इसको जो है सबसे पहले जो है वो पब्लिश किया गया था अटलांटिक मंथली में, और इसके साथ दो और पोयम जिसका नाम द साउंड ऑफ ट्री और रोड नॉट टेकन है, इसके साथ इसको जो है सबसे पहले अटलांटिक मंथली में पब्लिश किया गया था। और आफ्टर दैट उनको जो है फिर बाद में इस पोयम को उनके कलेक्शन ऑफ पोएट्री माउंटेन इंटरवल में 1916 में दोबारा से पब्लिश किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेगा। Where did Frost spend most of his teenage years? Lawrence, Massachusetts, Boston, Massachusetts, San Francisco, California, और Franconia, New Hampshire. Yes, the correct option is Lawrence, Massachusetts. एक्चुअली क्या हुआ था कि 1885 में जो है हिज फादर डाइड ड्यू ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। उसके बाद इनकी जो मदर थी आइसाबेला, वो जो है क्या हुआ था इनके अपने ससुर के साथ, यानी कि इनके अपने फादर इन लॉ के साथ जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट को और उनकी एक जो बहन थी जैनी, उसके साथ जो है वो शिफ्ट कर गई थी कहाँ, लॉरेंस मैसेच्यूसेट्स में। ठीक है, तो इनके फादर के डेथ के बाद, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के फादर के डेथ के बाद जो कि 1885 में हुआ था, एंड हिज फादर डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, इनकी मदर आइसाबेला जो है क्या हुआ था, इनकी एक बहन जैनी और रॉबर्ट के साथ जो है वो शिफ्ट हो गई थी कहाँ, लॉरेंस मैसेच्यूसेट्स में, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ हिज ग्रैंडफादर। ओके, till now clear? What was the title of the first poem that Frost published professionally? The road diverged into a wood, fire and ice, stopping by woods on a snowy evening, my butterfly and elegy. Yes, the correct option is D, my butterfly and elegy. Actually it was published in 1894 और इसके एक साल के बाद ही उन्होंने शादी कर ली थी। Question number 11. The poem Birches. What does the poet likes to think causes the birches to bend? Yes, जब मैंने आपको birches पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया होगा। Yes, options देख लेते हैं पहले। The wind blowing, the boy swinging on them, the rain, or the weight of the ice from the ice storm. Yes, the correct option is B. The boy swinging on the tree. पहले जो है पोएट क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि कुछ लड़कों ने जो है इन्हें क्या कर दिया, झुका दिया। फिर वो उसका करेक्ट रीजन बताती हैं और फिर पोएट जो है वो क्या करते हैं, फैंसी में चला जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं ऐसा सोचना चाहता हूं कि कुछ लड़कों ने इन्हें झुका दिया है। क्वेश्चन नंबर 12. When was Birches published? 1900, 1916, 1925 or 1941? Yes, the correct option is B. 1916 में जो है इसको दूसरी बार पब्लिश कराया गया था उनके पोएट्री ऑफ कलेक्शन किसके साथ, माउंटेन इंटरवल के साथ। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 13. In what poetic form is Birches written in? Options are blank verse, heroic couplet, sonnet, or there is no strict poetic form in the poem. Yes, the correct option is blank verse. Question number 14. What is one thing that the act of swinging might symbolize? That is the crux of the poem. What is the one thing that the act of swinging might symbolize? The options are the importance of scientific truth, the desire to escape from reality, the desire for the radical political changes, the importance of understanding formal philosophy. Yes, the correct answer is B, the desire to escape from reality. Actually, पोएट जो है इस अर्थली लाइफ के अगलीनेस से, इसके हार्शनेस से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ड्यूटी से एस्केप करना चाहते हैं फैंसी में, बट ये जो है हमेशा के लिए एस्केप नहीं करना चाहते, वो अपनी इमेजिनेशन में एस्केप करना चाहते हैं, उस इमेजिनेशन से एनर्जी लेना चाहते हैं, रिफ्रेश होना चाहते हैं और फिर दोबारा से कम बैक करना चाहते हैं अर्थली लाइफ में विथ हिज ग्रेट जील, ताकि वो क्या कर सके, फाइट कर सके दोबारा से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सही तरीके से निभा सके, अपनी ड्यूटीज को निभा सके।
Frost's poetry is primarily based upon New England life, where he actually born. Actually, yes, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं. The options are Peninsula, Massachusetts, California, and Nevada. यस द ऑप्शन इज मैस्ट्रेट्स. जैसा कि मैंने आपको बताया है कि उनका जो बर्थ प्लेस था वो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया था, ठीक है, जो कि यूएस में है. वो 11 साल तक वहां रहते हैं और जैसे ही वो 11 साल के होते हैं उनकी माँ जो है उनको लेकर के कहाँ चली जाती है, न्यू इंग्लैंड चली जाती है, जहां से उनकी पोएट्री जो है वो एसोसिएटेड है. समथिंग देयर Something there is that does not love a wall is a line from Mending Wall. What is something mentioned? Men in society, good neighbors, hunters, dogs, nature, and narrator. Yes, the correct option is नेचर नरेटर. ये लाइंस जो है वो मेंडिंग वॉल की है और इसमें ये बिल्कुल ही ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखी गई है. इसमें जो नरेटर है वो पोएट खुद है और जो दूसरा जो है वो जिस लिसनर है या जिससे वो बातें कर रहा है दैट इज उसका नेबर है और उसका नेबर कहता है कि गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. अच्छी दीवारें जो है वो अच्छे पड़ोसी बनाते हैं. बट जो पोएट है उस बात से एग्री नहीं करते हैं और कहते हैं कि समथिंग that does not love a wall. ये जो दीवारें हैं ना इनमें प्यार नहीं बसते. तो यहाँ पर समथिंग जो है ये किसको रिफर करता है, नरेटर को रिफर करता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी. What actually binds the birches down to stay in the frost poem? Birches, किस चीज ने birches के पेड़ को एक्चुअल में रियल में जो है झुका दिया था? The options are child playing on them, broken branches, heavy rains, ice storm. And the correct option is ice storm. जैसे ये पोएम्स शुरू होती है, मैंने आपको पोएम में बताया था कि इसमें जो है बिल्कुल ही फ्यूजन पाया जाता है किस चीज का, फैंसी का और ट्रुथ का, इमेजिनेशन का और रियलिटी का. तो पोएट जो पहले इमेजिन करते हैं कि ऐसा लगता है कि कुछ लड़कों ने इसे झुका दिया है, इस बर्चेस के पेड़ को कुछ लड़कों ने झुका दिया. फिर पोएट वहां से निकल करके अपनी रियलिटी में आ जाते हैं और उन्हें वो बताते हैं ऑडियंस को, अपने रीडर्स को, कि ये जो बर्चेस के पेड़ है वो इसलिए झुके हैं कि इसमें कई दिनों तक, कई महीनों तक जो बर्फ होती है वो इनके तनों पर, इनके पत्तियों पर क्या होती है, लदी रहती है और जिसके बोझ से क्या हो गए, वो बिल्कुल ही नीचे की तरफ झुक गए हैं, बेंड हो गए. और यहाँ पर जो पोएट ने यूज किया हाईली सेंसरी लैंग्वेज का यूज किया है. Question number 18. Robert Frost, the Queen's English poet, spent his first 11 years in which place? Derry, Montessor, London, New Hampshire, लंदन इंग्लैंड और सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया. ये बिल्कुल ही जो भी मैंने बताया है वही बात है कि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि उनका जो बर्थ प्लेस था वो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया है और शुरू के जो टाइम है उन्होंने वहीं पे गुजारे हैं और बाद में जो है वो कहाँ चले गए थे, न्यू इंग्लैंड, जहां से उनकी पोएट्री एसोसिएटेड है. फ्रॉम विच पोएम इज द फॉलोइंग लाइन एक्सट्रैक्टेड? अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव. यस, earth is the right place for love. Mowing, birches, the earth and the other places for love, desert place. Yes, the correct option is B. अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव. और यही रीजन है कि पोएट जो है वो क्या करते हैं, अपने इमेजिनेशन से कम बैक करना चाहते हैं. इस पोएम में पोएट कहते हैं कि मैं इस जो अर्थली लाइफ है उसकी परेशानियों से, अपनी ड्यूटीज से और ये जो मुश्किल रास्ते आते हैं इससे क्या करना चाहता हूँ, कुछ टाइम के लिए एस्केप करना चाहता हूँ इमेजिनेशन में, लेकिन फिर क्या करना चाहता हूँ, मैं कम बैक करना चाहता हूँ अपने प्रेजेंट लाइफ में, अपने अर्थली लाइफ में. क्यों? क्योंकि अर्थ इज द राइट प्लेस टू लिव एंड आई डोंट नो वेयर इज मतलब इससे बेहतर जगह अर्थ जो है वो सबसे बेहतर जगह है प्यार करने के लिए और मैं नहीं जानता कि इससे बेहतर जगह और कोई है. क्वेश्चन नंबर 20. Who defined free verse as playing tennis without a net? The options are Ezra Pound, Philip Larkin, Robert Frost, or none of them.
Yes, the correct option is Robert Frost. Question number 21. And miles to go before I sleep is a line from which poem of Robert Frost? Options are Birches, Stopping by Woods on a Snowy Evening, Road Not Taken, Mending Wall. And the correct option is stopping by woods on a snowy evening. Yes, stopping by woods in a snowy evening की लास्ट लाइन है और इसकी पूरी स्टैंजा है The woods are lovely, dark and deep, but I have promised to keep the miles to go before I sleep. The miles to go before I sleep. यहाँ पे जो पोएट है बिफोर स्लीप यानी कि सोने से पहले, स्लीप का मतलब यहाँ पे डेथ को सिंबलाइज करता है, यानी कि जब हम इस दुनिया में आए हैं तो गॉड ने जो है हमें कुछ ड्यूटीज के साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ भेजा है। उन ड्यूटीज को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हमें पूरा करना है किससे पहले? बिफोर डेथ। गॉड के पास दोबारा जाने से पहले हमें उन ड्यूटीज को, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना है। इसीलिए पोएट कहते हैं द माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। अभी बहुत लंबा चलना है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना है, बहुत सारी ड्यूटीज को निभाना है, दोबारा क्या करने के पास? गॉड के पास जाने से पहले, मरने से पहले सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना है। द फिगर अ पोएम मेक्स इज अ पोएम, पेंटिंग, essay or novel? Yes, the correct option is C, is a essay. ये जो वर्क है द फिगर अ पोएम मेक्स, ये एक्चुअली ऐसे है किसका? रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, जिसमें जो है वो अपने एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग रादर देन रीडिंग, जो उनका एक्चुअल एक्सपीरियंस है उसके बारे में क्या करते हैं? बताते हैं। उन्होंने पोएट्री के बारे में कहा है कि पोएट्री बिगिंस विद डिलाइट एंड एंड्स इन विजडम। In which of the following poem deals with the neighborly relationship? Neighborly relations के बारे में कौन सी poem deals करती है? Birches, Mending Wall, Home Buried or none of them? Yes, the correct option is Mending Wall. Question number 24. Which of the poem deals with the death of a child? Birches, Mending Wall, Home Buried or none of them? Yes, the correct option is Home Buried. इसमें जो है एक न्यूली मैरिड कपल होते हैं, वो अपने फर्स्ट चाइल्ड को खो देते हैं और किस तरीके से न्यू इंग्लैंड के फार्म हाउस में वो रहते हैं, उनके बच्चे की डेथ हो जाती है। आफ्टर डेथ जो है वो कपल अपने आप को किस तरह से कंसोल करते हैं, किस तरीके से उस एंजाइटी से बाहर आते हैं, दिस पोएम डील्स विद ऑल अबाउट। Question number 25. We come to an end. Which of the following poem records a moment of a pure delight in midwinter, which is transitory moment of contemplation of beauty of a snow-covered wood before he must go on with his duties? Yes, the options are Birches, Mending Wall, Home Buried, Stopping by Woods in a Snowy Evening, Stopping by Woods on a Snowy Evening, or what? What is the correct answer? Yes, the correct option is D, Stopping by Woods on a Snowy Evening. यहाँ पे पोएट जो है वो कहीं जा रहे होते हैं, रास्ते में उन्हें एक वुड दिखाई देता है और वो उसकी खूबसूरती से इतने फैसिनेट हो जाते हैं कि वहां पर रुक जाते हैं और उसको देखने लगते हैं। बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट होते हैं, उनका दिल कहता है कि रुक जाए, बस ये पल यहीं पे रुक जाए और मैं इस खूबसूरती को देखता ही रहूं। और फिर उन्हें याद आता है कि उन्होंने की जो कुछ ड्यूटीज़ है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसको उन्हें निभाना है। और वो कहते हैं द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रॉमिस्ड टू गो द माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, द माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। क्वेश्चन नंबर 26. चूज द करेक्ट क्रॉनिकल ऑर्डर। आपको इसमें ईयर के हिसाब से क्या करना है? सजाना है। द फर्स्ट ऑप्शन इज, पहला जो है ये आपको ये क्वेश्चंस को जो है ये जो उनका वर्क है इसको क्रॉनिकली सजाना है। माउंटेन इंटरवल, न्यू हैम्पशायर, वेस्ट रनिंग ब्रूक और द फर्दर रेंज। योर ऑप्शंस आर ए बी सी डी, बी ए डी सी, डी सी बी ए and C A B D. Yes, the correct option is A, B C D.
बहुत ही आसान रखा है मैंने, ABCD। माउंटेन इंटरवल 1916 में आई थी, न्यू हैम्पशायर 1923 में आई थी, द वेस्ट स्टेलिंग ग्रुप जो है वो 1928 में आई थी, और द फर्दर रेंज वो 1936 में आई थी। द लास्ट क्वेश्चन, द पोएम गिफ्ट आउटरीच इज अ लव पोएम, narrative poem, patriotic poem, or a mournful poem? What is the correct answer? Yes, see, it is a patriotic poem, and he recited the gift outright at the inauguration of the US President John F. Kennedy in 1961. 1961 में जो है जॉन एफ कैनेडी की स्विंग इनॉग्रेशन सेरेमनी में जो है उन्होंने इसको क्या किया था, रिसाइट किया था। और ये वर्क जो है किस में आता है, बताइए बताइए किस में आता है, द विटनेस ट्री के कलेक्शन में आता है, जो कि 1943 में आई थी, और जिसके लिए उनको क्या मिला था, पुलित्जर प्राइज मिली थी। तो मैंने अपनी तरफ से जो है सारे क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश की है, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। हमारी जो वीडियोस हमारे जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर, अगर आप उसको देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप हमें मैसेज कीजिए, या फिर हमें व्हाट्सअप कीजिए, या फिर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।